जना साहब जी, खालिद महमूद जी, एक्सप्रेस टीवी से। जना साहब, इंडियन मीडिया ने जो 3 दिन में तूफान बर्पा किया, उसको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उसका जवाब भी उनको दिया गया। आज जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि बहावलपुर में जो उन्होंने टारगेट किया था, उसमें रऊफ नामी शख्स को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीवमेंट उसको शो कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसा कोई वाकया वहां पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है? I think this question was discussed day before, once we had the last press conference. And because this was discussed this point was made by this, so we have pulled out the same video clip. So I'll just see that first so that you can see what the fact of the matter is. If we can run that clip, because reality is for everyone to clear, is obviously for everyone to see. So you see, yes, this one. If you just stop here. So this is the Indian High Commissioner in UK who is showing on international media picture of a person leading the prayers. You can see that. Now he is saying that this man is brother of an alleged person who is in Inkasi nation, and that this man is the brother of that terrorist, the alleged terrorist that they say. Now run this. If you can run this clip. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdur Rauf. So he's saying, stop here. So he's saying he is Hafiz Abdur Rauf, who is a sanctioned terrorist, and this terrorist is leading this prayer. So he is a High Commissioner of the Indian government. No, go ahead. That you're mentioning. Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindoor. That's Maulana. Now stop here. Rauf Azhar. Masood Azhar. Kindly, please. So what he's saying now, the media is saying that no, this person has died. So at the same time, he is dead for them. At the same time, he is alive for them, to whom to believe. So what we did was, we tried to reach out this man, because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. Brother Abdul Rauf Azhar killed in Operation Sindoor. Your own Pakistani military has said that Masood Azhar's family has been killed. I'm quoting the Pakistani military. No, stop here. No, please stop here. Kindly, please. No, the misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a very a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top-ranking official. And she's saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about him? But he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he's saying. जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्किर है, जिसका हक़ाइक़ से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। So he's saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. So we are actually surprised that even today, then again,
they have come out with the same thing. So it is now getting, it's a little flabbergasted that whatever they are telling, why they are telling, and what to believe, what not to believe. सदीक सारा जी एक न्यूज़ से रब नवाज साहब आपसे सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले INS विक्रांत के हवाले से बात हुई क्योंकि इंडियन सोशल मीडिया जो था और उनका अपना मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था और फिर उसके बाद टेलीग्राफ की एक स्टोरी आई, फिर कराची की बंदरगाह के हवाले से कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। फिर आप देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो हमसे 3 गुना वो बड़ी है। तो लेकिन आपने ये भी कहा कि हमारी जो फोर्स जो है वो खामोश फोर्स है। तो क्या ये जो खामोशी थी किसी तूफान का पेश खैमा थी जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर सके? क्योंकि इधर तो लड़ाई हो रही थी अब आर्मी की भी और फजाइया की भी। जी बहुत शुक्रिया। वो इंडियन मीडिया ने तो आपने देख लिया था कि वो कराची पे वो और बाकी भी लाहौर की बंदरगाह पे भी कब्जा कर लिया था जो आपने देखा उस पे। तो वो तो लेट्स कीप दैट असाइड। सो अगेन मैंने कहा ना कि ये भी जो टेलीग्राफ की भी जो सारी ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं और जो मैंने आपकी कैपेबिलिटी बता दी एंड इंडियन नेवी आल्सो अंडरस्टैंड्स कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और उसकी फॉर एग्जाम्पल कराची से करीब लेके आना 400 मील में मैंने आपसे कहा इवन एट दैट रेंज एंड इफ इट कम्स इवन क्लोजर सो दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली वल्नरेबल। दे अंडरस्टैंड इट परफेक्टली वेल। एक तो जो कोऑर्डिनेटेड थ्रेट है नेवल एयर आर्म एंड पाकिस्तान एयरफोर्स जो जनरेट करती है वो और इवन जो हमारी सब सरफेस एलिमेंट्स डिप्लॉयड थे तो वो दे फुली अंडरस्टूड एट ऑल टाइम्स कि क्या थ्रेट्स हैं। लेकिन जाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि जो वॉर की प्रोसिक्यूशन होती है दैट्स नॉट एन आइसोलेटेड सर्विस मैटर, दैट इज कोऑर्डिनेटेड एट ऑल 3 सर्विसेज लेवल। तो वो उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उसी हिसाब से होती है। और लाइक ये मैंने कहा ना IO डोमेन में जैसे आपने टेलीग्राफ का जिक्र किया और फिर वो एक थोड़ी सी तशवीश सी फैली तो वो मोर ऑफ IO डोमेन में था। वो तो जब उससे बहुत पहले भी जो है अराउंड आई थिंक 23rd 26th ऑफ अप्रैल भी जब वो कारवार से निकला था तो उसी दिन वो कराची पे पहुंच भी चुका था। तो वो भी उस दिन आपने उनकी मीडिया में देखा होगा। तो वो ये सब उसी IO डोमेन में था और कैपेबिलिटी दे ऑल अंडरस्टैंड एंड व्हाइल आई एम नॉट अंडरमाइनिंग लेकिन आई एम जस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट। वी अंडरस्टैंड, वी हैव आवर प्लान रेडी और मतलब अगर कोई एडवेंचरिज्म की तरफ आता है तो वी विल टेक देम डाउन। थैंक यू वेरी मच। बी न्यूज से हूँ सर। इसमें जो ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया था उसमें काफी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज यूज की गई, बुनियान मरसूस जो इंडियन मीडिया से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था। उसके अलावा फल मुगीरात सुबहान ये सुबह के वक्त अटैक किया गया जो कि एक सुन्नत था। तो ये किसकी क्या हाफिज साहब का आइडिया था, ये किस तरह प्लान हुआ है? देखिए पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है इट इज पार्ट नॉट पर्सनली of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है जो ऊपर होती है उसका जो बिलीफ होता है उसकी जो कमिटमेंट होती है वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीकों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं दे एक्टेड लाइक ए स्टील वॉल।